Okay, today we'll start with reactions of phenol. The first thing here, phenol undergoes electrophilic substitution reaction. See, phenol undergoes electrophilic substitution reaction. Okay, that's the first thing. Second, the dash OH group in phenol is ring activating and an ortho para directing group. See, what is the first thing point you said? Now phenol will undergo which reaction? Phenol will undergo electrophilic substitution reaction. That is the first thing. Second, phenol में जो हमारा OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप phenol रिंग को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा. हमारा OH phenol रिंग को एक्टिवेट करेगा और हमारा phenol रिंग में सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा? मतलब हमारा अटैक कहाँ पे होगा? At ortho and para position. मतलब हमारा जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, in the product the substitution will occur either at ortho or at para position. And we are starting with the first one here. The first one in that, the first one is halogenation of phenol. Now what is the meaning of halogenation? Halogenation means what? Addition of halogen. Halogenation means addition of halogen. Now first thing here in this, phenol reacts with aqueous solution of bromine. हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करेगा? aqueous solution of bromine. मतलब जो ब्रोमीन है, what is the formula of bromine? Br2, right? Bromine, but bromine should dissolve in water, so then it can be called as what? Aqueous solution of bromine. So phenol react with the aqueous solution of the bromine to give 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. मतलब हमारा जो फिनॉल है वो एक्वियस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. ओके, I'll write down the reaction. Like phenol, this is phenol. Allow the phenol to react with the bromine. Bromine is Br2. Bromine dissolved in water, and then we know that here electrophilic substitution reaction will occur, and reaction will occur at which position? Either at ortho and at para. यहाँ पे क्या होगा? Br2 है, उसमें से Br चला जाएगा ortho position पे और कहाँ पे चला जाएगा? para positions पे. और ये यहाँ पे ortho कौन सा पोजीशन होता है? 2. ये अगर नंबर 1 रहेगा तो 2 is ortho,
3 is meta, 4 is para, 5th is meta and 6th is also ortho. यहाँ पे हमारा substitution हो जाएगा. तो 1 BR, see I'll write the product here. Ring remains the same. 1 BR will attach at this position. 1 BR will attach at this position. And 1 BR will attach at this position. Okay. तो सी अगर ये हमारा OH है तो 1, तो ये नंबर रहेगा 2, 3, 4, 5 and 6. We are having BR at this position, second position BR, fourth position BR and the sixth position BR. So 2, 4, 6. 2, 4, 6. Try bromo. Okay, try bromo. And originally this compound is what? Phenol. So name is what? 2, 4, 6. Try bromophenol plus. अभी देखो जब Br यहाँ पे चला जाएगा तो इस कॉर्नर से क्या निकलेगा? Because we know in benzene ring every corner we are having one hydrogen atom. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, one hydrogen and one hydrogen atom. तो जब Br यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H. यहाँ से भी क्या बाहर निकलेगा? H. और यहाँ से भी क्या बाहर निकलेगा? H. तो कितने H बाहर आ रहे? 3 H. 3 H रिएक्ट करेंगे किसके साथ? Br के साथ. तो और हमें क्या मिलेगा? 3 HBr. क्या मिलेगा? 3 HBr. तो यहाँ से जो 3 H निकलेंगे वो भी रिएक्ट करेंगे Br के साथ और हमें क्या मिलेगा? 3 HBr. अभी इक्वेशन को बैलेंस करो. देखो यहाँ पे कितने Br है हमारे पास? 1, 2, 3 Br. ओके. और यहाँ पे 3 Br, 6 Br है. तो यहाँ I'll multiply by 3. 3 2s are 6. तो ये हमारा हुआ. So if phenol react with bromine water, phenol react with the bromine water, we get 2, 4, 6 tribromophenol. Okay. Now second here, if, और यहाँ पे और एक है, मतलब यहाँ हमारा रिएक्शन ब्रोमीन के साथ था, ये हमारा रिएक्शन ब्रोमीन के साथ था. क्लोरीन reacts in the same way. Chlorine react in the same way. मतलब जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल इन द एग्जाम दे आज द रिएक्शन की ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ऐड करो तो क्लोरीन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरीन? Cl2. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Cl एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? 3HCl. अगर हम लोग क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीन विल आल्सो रिएक्ट इन द सेम वे as the bromine has reacted or as the bromine is reacting with the phenol. Okay, ये हुआ. Now I'll go for second one. यहाँ पे ये हेलोजिनेशन हम लोग करे. फर्स्ट हुआ फिनॉल में क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने? ब्रोमीन, बट इन द एक्वियस मीडियम. ओके. नेक्स्ट second point I'll say here, if the reaction is carried out in a solvent of lower polarity than water, okay, then a mixture of ortho and para bromophenol is formed. देखो मतलब सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है यहाँ पे, मतलब फिनॉल ये फिनॉल है, but instead of we are adding bromine,
but we are adding bromine in the presence of CS2. मतलब CS2 का मतलब क्या होता है? CS2 is called as carbon disulfide. कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड will act as a solvent. देखो हमने फर्स्ट में क्या किया था, वाटर यूज किया था. नाउ वी आर यूजिंग सॉल्वेंट, we are using a solvent other than water, so we are using with solvent disulfide, okay, at low temperature, and we are performing the reactions at low temperature. So we are having a phenol. To the phenol we are adding the bromine in the presence of carbon disulfide at a low temperature, and then here which product we get? Ortho and para product we will get. Ortho and para. So Br, one product, the Br will go at the ortho position, and in the other product the Br will go at the para position. So what we get here? OH, and here we get the Br plus OH, and we get the Br at the para position. Okay. Abhi dekho, see, when Br attach here, what comes out from this corner? H. When Br attach here, what comes out from this corner? H. So how many H are coming out? 2H, and दोनों H Br के साथ combine करेंगे, and then we will get the product over here as HBr, 2HBr. See here, Br attach at this position, और यहाँ से एक H बाहर निकलेगा. Br attach at this position, यहाँ से एक Br बाहर निकलेगा. तो 2H will combine with the 2Br, and 2H with 2Br क्या मिलेगा? HBr. Now balance the equation. How many ring? 1 and 2 ring. So I'll just write down here 2 rings. Then how many total Br we are having here? 1, 2, और यहाँ पे 2Br. So 4Br. So यहाँ पे already 2 है, so multiply by 2. And equation is balanced. Now we'll write down the name. This is first one is called as ortho bromo phenol, and this is called as a para bromo phenol. Okay, para bromo phenol, and we know that the para product is always major, so this is going to be a major product. This is going to be a major product. Okay, so what we have seen here कि अगर हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में अगर ऐड कर दिया तो क्या मिल रहा था प्रोडक्ट? ब्रोमीन अगर वाटर के प्रेजेंस में ऐड करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल. लेकिन अगर ब्रोमीन ऐड करोगे अदर देन द वाटर, मतलब लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या मिलेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा प्लस पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मिक्सचर ऑफ द टू मिलेगा. ये हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ विल गो फॉर द सेकंड रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. Nitration of the phenol. Okay, what is nitration of the phenol? The first I'll say here, phenol reacts with dilute nitric acid, dilute, at low temperature to give mixture of ortho and para nitrophenol. See here कि अगर हम लोगों ने, what is नाइट्रेशन? नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रेशन का मतलब क्या है? एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. एंड व्हाट इज नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला? HNO3. HNO3. बट ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग कैसे लिखेंगे? OH NO2. सी, नाइट्रेशन का मतलब
action of nitric acid. What is formula for nitric acid? HNO3 और HNO3 को कैसे लिख सकते हो आप? OH or NO2, and this NO2 group is called as a nitro. Okay, so first we'll have here the first in this, I can say this is the first one. Phenol react with nitric acid. I'll write nitric acid is which formula? OHNO2. So I'll write here OHNO2, and which nitric acid? Dilute. At, of course, at low temperature. Low. Okay, then here one NO2 will go at the ortho position, other NO2 will go at the para position. तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो OH NO2 OH NO. अभी देखो जब NO2 यहाँ पे अटैक करेगा तो इस कॉर्नर से क्या बाहर निकलेगा? H. NO2 जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या कॉर्नर से बाहर निकलेगा? H, और H will combine with OH. कितने H बाहर आ रहे हैं? यहाँ से एक आ रहा है H, यहाँ से H बाहर, दो H आ रहे हैं, तो 2H will combine with 2OH. 2H will combine with 2OH, and H combine with OH will give you what? 2 water, because 2H combined with the 2OH, 2H combined with 2OH gives you what? 2 water, correct? Now balance the equation. How many rings we have? 2 rings. 2 rings. So I'll multiply by 2. Then here, how many NO2 group we got? 2 NO2 group. 2. So everything balanced, and now this can be called as ortho nitrophenol, and this is called as a para nitrophenol, because originally हमारा कंपाउंड कौन सा है? फिनॉल है. तो फिनॉल में ऑर्थो पे NO2 आ गया तो क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? पैरा नाइट्रोफिनॉल. हमने ऐड किया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. Now we'll see the same reaction here, but with concentrated nitric acid. ये हमारा डाइल्यूट के साथ था. One minute. Okay, now I'm having here action of concentrated nitric acid. Concentrated. Now again here I'll write phenol. Phenol. Nitric acid can be written as what? OH NO2. Okay, and we are using concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid. See here, phenol to phenol. We are adding concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, and then, so what is the product we are getting here? OH. One NO2 will go at this position. यहाँ पे एक NO2 आएगा, एक NO2 यहाँ पे आएगा, और थर्ड मैं ऐसा लिखूंगा NO2. See here, NO2 यहाँ पे चला जाएगा तो इस कॉर्नर से क्या बाहर निकलेगा? H. NO2 जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे से क्या बाहर निकलेगा? H. और NO2 जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से भी क्या बाहर निकलेगा? H. So when NO2 attack to the benzene ring, how many H we got? 3H, and 3H will combine with 3OH, and 3H and 3OH combine together to give you what? 3H2, because we know that 1H plus and 1 OH minus combine together to give you 1 water. So 3H plus and 3 OH minus combine together to give you 3 water.
ओके, तो बैलेंस को रिएक्शन वन रिंग बाद में how many NO2 ग्रुप 1 2 3 NO2 ग्रुप, यहाँ पे भी कितने NO2 ग्रुप है 3 NO2 ग्रुप है एंड इक्वेशन इज बैलेंस। दिस इज कॉल्ड एज 2,4,6। देखो अगर यहाँ पे नंबर 1 है तो यह आएगा 2, यह आएगा 4, यह आएगा 6। 2,4,6 2,4,6 क्या आएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 trinitrophenol, and this compound very commonly called as picric acid. This compound is very commonly called as a picric acid. So phenol react with concentrated nitric acid. In the presence of concentrated sulfuric acid, we get 2,4,6 trinitrophenol. नंबर 1 है, 2, 3, 4 है, 5, 6। तो हम नाइट्रेशन में क्या देखा कि अगर हम लोगों ने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर ऐड करेंगे, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विल गिव्स यू व्हाट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। और अगर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और अ पिक्रिक एसिड। ये हमारा नाइट्रेशन हुआ। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज sulfonation of phenol. Sulfonation. What is some sulfonation? Sulfonation means action of sulfuric acid. Sulfonation means what? Action of sulfuric acid. Now what is formed of sulfuric acid? H2SO4. Okay, H2SO4 क्या फॉर्म करेगा, मतलब इसे कैन बी ऑल्सो रिटन इन विच फॉर्म, OH SO3H, and this SO3H group is called as a sulfonic group. This group is called as sulfonic group, और ये ग्रुप हम लोग रिंग में ऐड करेंगे, इसलिए क्या बोल रहे हैं, सल्फोनेशन। सो बेसिकली व्हाट इज सल्फोनेशन? सल्फोनेशन का मतलब क्या है, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, H2SO4, और H2SO4 can be also written as what, H2SO3H, and this SO3H group can be called as what, sulfonic group। और इस सल्फोनिक ग्रुप हम लोग फिनॉल में ऐड करेंगे, इसलिए उसे क्या बोलना है, सल्फोनेशन। ओके, नाउ इन दैट अगेन फर्स्ट वन, phenol react with concentrated sulfuric acid at phenol react with concentrated sulfuric acid at low temperature. Phenol react with concentrated sulfuric acid at low temperature. तो कैसा रिएक्शन आएगा, देखो तुम्हारा फिर यहाँ पे phenol okay, then sulfuric acid can be written in which form, HOSO3H, correct, at low temperature. So I can say at what, 293 Kelvin. Now in this case, this sulfonic group will go and attach at which position, ortho position, only ortho। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो फिर यहाँ पे phenol and this will go attach। So here we get SO3H, correct, SO3H, और जब SO3H यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H कंबाइन करेगा OH के साथ, and H and OH combine together to gives you water। तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, and this is called as orthophenol sulfonic acid। orthophenol sulfonic acid, P भी लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो, orthophenol sulfonic acid। and अगर if phenol
reacts with, if phenol reacts with concentrated H2SO4 at higher temperature. If phenol react with concentrated H2SO4 at higher temperature, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो हमें phenol और right here OH SO3H and we are heating at 373 Kelvin. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, करेक्ट. इधर भी ऐड कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी ऐड कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट हियर एडिंग एट लो टेम्परेचर and here you are adding at a high temperature. Now because you are adding at high temperature, sulfonic group will go at the para position. Sulfonic group कहाँ पे चला जाएगा? Para position पे चला जाएगा. So here we get a benzene ring OH and then we'll have here SO3H. और जब SO3H यहाँ पे अटैच करेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H. Combine करेगा OH के साथ and H and OH combine together to give you water. This is called as para phenol sulfonic acid. Para phenol sulfonic acid. Okay. So we have seen the action of the bromine. Then we have seen the action of nitric acid, dilute and concentrated. And then we have seen the action of sulfuric acid. I'll go for the next one. Here the next, that is D. Reamer, Tiemann, reaction. Reamer, primer, Tiemann reaction, Reimer-Tiemann reaction, and it is called as the Nehm reaction. It is called as a Nehm reaction. Now we'll see how this reaction exactly occurs. See here we'll have a phenol, Phenol will react with. Now I'll just showing in detail और बाद में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ. सबसे पहले क्या होगा? Phenol will react with NaOH. Then we know that when phenol react with the NaOH here, phenol is acidic in nature, NaOH is basic in nature, and acid and base react, and this type of the reaction are called as a neutralization. और यहाँ पे फिर क्या मिलेगा? Phenol OH will change to what? ONA. तो OH will change to ONA. और ऐसे भी बोल सकता हूँ यहाँ से OH और यहाँ से रिमूव होगा H. So phenol will react with the NaOH. The reaction taking place is which one? Neutralization. Correct? Neutralization. The acid and base react, they form salt, and this is called as a sodium. This is called as sodium phenoxide. Correct? And then in sodium phenoxide, Na has a charge of plus, O has a charge of minus, and what has been eliminated? यहाँ पे eliminate क्या हो गया? H and OH has been eliminated, so loss of water.
माइनस का मतलब लॉस ऑफ वाटर. Now once we got this product, then we'll allow it to react with इसके आगे फिर react करोगे आप. This will react with CHCl3. तो CHCl3 कैसे लिखेंगे हम लोग? CHCl3. CHCl3 is called as chloroform. CHCl3 is called as a chloroform. ये हमारा क्लोरोफॉर्म. और आपने कन्वीनियंट के लिए कैसे लिखा मैंने? CHCl3. अभी हमें मालूम है बेंजीन रिंग पे यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमेशा क्या होता है? H होता है. बेंजीन रिंग पे इस कॉर्नर पे हमेशा क्या होता है? H होता है. हम लोग दिखाते नहीं है लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे H है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो अभी ये H और ये Cl साथ में आएगा. ये H और ये Cl साथ में आएगा. तो यहाँ से क्या लॉस होगा? HCl रिमूव हो जाएगा. क्या रिमूव हो जाएगा? HCl रिमूव होगा. H and Cl combine together and form HCl. और एक कार्बन अटैच करेगा रिंग को. तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप है? ONA. सेम है Na+O-. और यहाँ पे इधर रिंग से निकाला H, यहाँ से निकाला Cl. तो वी आर लूजिंग HCl. और कार्बन रिंग को अटैच करेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे कार्बन. और कार्बन को क्या अटैच है? HCl. कार्बन को अटैच है HCl. HCl. लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल है. यहाँ पे यहाँ से रिमूव करोगे H, यहाँ से रिमूव करोगे Cl, तो HCl निकल गया. और कार्बन ने अटैच किया रिंग को. कार्बन रिंग को अटैच हुआ और कार्बन को क्या क्या अटैच है? यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl. ये कंपाउंड हमें मिला. ये अनस्टेबल है इसलिए हमने किसमें लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा. And the unstable compound can be called as what? इंटरमीडिएट. ये हमारा इंटरमीडिएट. उसके बाद अभी एक बार इंटरमीडिएट मिल गया, फिर इसके अंदर क्या ऐड करोगे? ये जो हमें कंपाउंड मिला हुआ है इस कंपाउंड के अंदर ऐड करोगे NaOH. क्या ऐड करोगे? NaOH ऐड करोगे. तो जब NaOH ऐड करोगे NaOH, तो यहाँ पे क्या होगा? Cl will be replaced by OH. ये भी Cl will be replaced by OH. तो कितने हमारे पास है? 2. Cl के जगह चला जाएगा OH, Cl के जगह चला जाएगा OH. तो यहाँ से क्या है? 2Na और Cl करके लॉस क्या किया हम लोगों ने? 2NaCl लॉस हुआ. तो यहाँ से रिमूव किया 2Na, यहाँ से रिमूव कर दिया Cl. तो क्या रिमूव कर दिया? 2NaCl रिमूव कर दिया. करेक्ट. और 2OH यहाँ पे चले, OH और यहाँ पे OH. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो हमारा द नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी रिंग सेम है. यहाँ पे ONA, Na+ है, O- है. यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को अटैच H है और Cl के जगह लिखा OH और इसके जगह भी लिखा OH. ये कंपाउंड हमें मिल गया. करेक्ट. अब ये कंपाउंड मिलने के बाद इसके आगे वाला स्टेप, यहाँ से रिमूव करो OH और यहाँ से रिमूव करो H. ऐसे मालूम है? तो व्हाट आर वी रिमूविंग? OH एंड H रिमूव करो मतलब हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं? वाटर. क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं हो सकते. तो इसका मतलब कंपाउंड कैसे बनेगा? अनस्टेबल बनेगा. एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं होंगे, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर अगर दोनों OH है तो कार्बन कैसा बनेगा? अनस्टेबल बनेगा. तो यहाँ से रिमूव करना है OH, यहाँ से रिमूव करना है H. तो क्या रिमूव कर रहे हो? वाटर. यहाँ पे क्या बचा फिर? CHO. and CHO is aldehyde. So I'll get the next product here. Ring ONA. Na is plus, O is minus. Okay. और यहाँ पे आएगा हमारा कौन सा ग्रुप? CHO. CH. और यार ये जो हमें मिल गया उसमें लास्ट में क्या ऐड करना है हमें? We have to add here dilute HCl.
डाइल्यूट HCl क्या प्रोड्यूस करेगा, H+, और H+ विल रिएक्ट विद वाटर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, H3O+. डाइल्यूट HCl विल प्रोड्यूस H+ एंड H+ रिएक्ट विद द वाटर, तो क्या मिलेगा, H3O+. तो यहाँ पे क्या फिर होगा, Na एंड Cl रिएक्ट करेगा, Na एंड Cl रिएक्ट करेगा, तो क्या लॉस होगा, NaCl लॉस होगा, Na एंड Cl लॉस करेगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, H यहाँ पे चला जाएगा. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी गेट ओवर हियर अ बेंजीन रिंग, यहाँ पे होगा OH और इधर आएगा CHO, करेक्ट. एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज salicylaldehyde. This compound is called as salicylaldehyde. Okay, एक बार रिपीट करता हूँ. See, this reaction is called as what? Riemer-Tiemann reaction. इसका नाम था जिसने रिएक्शन परफॉर्म किया था. What is the reaction? Phenol when treated with the NaOH. Which NaOH? Aqueous. ओके, तो पहले सबसे पहले क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड मिला. फिर उन्होंने क्या ऐड कर दिया, क्लोरोफॉर्म. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म, CHCl3. CHCl3 में क्या हुआ, यहाँ से रिंग पे H और यहाँ से Cl रिमूव कर दिया, तो HCl रिमूव हो गया और कार्बन रिंग को अटैच करेगा. तो कार्बन ने जब रिंग को अटैच किया तो ये कंपाउंड हमारा अनस्टेबल है, तो इसके लिए फिर हमने क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया. तो 2Na कंबाइन विद 2Cl, तो क्या लॉस हुआ, NaCl हुआ एंड Cl की जगह कौन आ गया, OH आ गया. ये कंपाउंड मिला, बट ये भी कंपाउंड अनस्टेबल है. अनस्टेबल है इसलिए यहाँ से रिमूव होगा OH, यहाँ से रिमूव होगा H और फिर क्या बचेगा, CHO. तो CHO मतलब अल्डिहाइड. और फिर इसके अंदर हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया. तो HCl मतलब यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलकर क्या लॉस होगा, NaCl लॉस हो गया और हमें क्या मिला, ये कंपाउंड. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सैलिसिलेट. आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो, और आई कैन राइट डाउन द वे दे हैव गिवन इन द टेक्स्ट बुक. मतलब टेक्स्ट बुक में क्या किया है, उन्होंने डिटेल में नहीं दिया हुआ है, हमने जितना डिटेल में किया हुआ है उतना डिटेल में नहीं दिया है. दे हैव जस्ट गिवन डायरेक्ट. तो वो भी मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे आए. How they have given in the direct textbook, you know, I just write here, or phenol. या आप एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हो, मतलब एग्जाम में ऐसे ही लिखो फिनॉल, और डायरेक्ट मतलब एक ही स्टेप में उन्होंने यहाँ पे CHCl3 भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे एक्वियस NaOH भी ऐड किया, मतलब दोनों एक साथ. और डायरेक्ट उन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है बेंजीन रिंग विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड ONA, Na is प्लस, O is माइनस, जो NaOH ने किया, और CHCl3 डायरेक्ट किसमें उन्होंने बताया, CHCl2. ये हमारा इंटरमीडिएट है. दो स्टेप्स ने उन्होंने एक साथ कर दिया. उसके बाद एक बार इंटरमीडिएट मिल जाएगा, फिर आगे उन्होंने क्या किया, जो इंटरमीडिएट जो हमें मिला उसमें क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया. और NaOH ऐड करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे और दो स्टेप को एक साथ लिख दिया. यहाँ पे लिखा ONA, Na प्लस O माइनस, और ये जो CHCl2 है उसको डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर दिया, CHO में कन्वर्ट कर दिया, CHO. और फिर लास्ट स्टेप उन्होंने क्या ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, और एसिड में क्या रिप्लेस, Na को रिप्लेस कर दिया. तो ये हमारा है OH और ये हमारा है CHO. दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलएल्डिहाइड. अब एग्जाम में ऐसे ही लिखो, लेकिन मैंने सिंपल भी बताया कि एग्जैक्टली कैसे आ रहा है. ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन. ओके, लेकिन अगर यहाँ पे एक नोट है, इफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया है, लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म की जगह इफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज यूज्ड in place of chloroform,
मतलब यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म यूज कर दिया है, लेकिन क्लोरोफॉर्म की जगह हमने क्या यूज कर दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला, CCl4 यूज कर दिया। देन हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड। हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड हमारा प्रोडक्ट रहेगा। मतलब व्हाट इज सैलिसाइक्लिक एसिड, बेंजाल, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे इधर मिलेगा OH और यहाँ पे मिलेगा COOH। दिस इज कॉल्ड एज द, तो क्लोरोफॉर्म यूज किया था इसलिए प्रोडक्ट क्या मिला, सैलिसल अल्डिहाइड, मतलब OH एंड CHO। लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर यूज कर दोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OH एंड COH, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, सैलिसाइक्लिक एसिड। ओके, तो ये हमारा रीमर टाइमन रिएक्शन हुआ। आई गो फॉर द नेक्स्ट वन। Sixth page number, and the next heading is E, that is whole reaction. Whole reaction, it is also a name reaction. Whole reaction, it is also a name reaction. Okay, now what is whole reaction here? This reaction also I'll show you in the detail, and then I'll show you in the shortcut the reaction कैसे बनेगा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या उन्होंने किया है, सोडियम फिनॉक्साइड लिया। स्टार्टिंग में उन्होंने सोडियम फिनॉक्साइड लिया, तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला देखो, benzene ring, and here I'm having O, N, Na is plus, O is minus. Sodium phenoxide, yeah, allowing it to react with what, carbon dioxide. अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2. CO2 is called as a carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कैसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CO2। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक बॉन्ड को यहाँ पे चला जाएगा O के पास, एक बॉन्ड O के पास चलते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। तो अभी लेकिन ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, O के पास। और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर O के पास जाएंगे तो O विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि O को अपना इलेक्ट्रॉन भी मिला और O को कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी मिला, मतलब O हैज गॉट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइनस, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो कार्बन विल हैव चार्ज पॉजिटिव, तो कार्बन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C और O के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो -1, और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए +1, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में आ गया। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड, पहले सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है वो भी अगर हम देखना है देख सकते हैं हम लोग। देखो हमें कुछ ये कैसे बनता है कि हमारे पास पहले, सबसे पहले हमारे पास है फिनॉल, ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल में क्या ऐड करोगे, sodium hydroxide, and we know that phenol is a acidic in nature, NaOH is a basic in nature, and when acid and base react, यहाँ पे क्या मिलेगा, Na plus O minus, और यहाँ से रिमूव होगा H, यहाँ से रिमूव होगा OH और मिलेगा H2। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, ये जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड अभी जो मिला हुआ है, राइट, सेकेंड स्टेप हियर, सोडियम फिनॉक्साइड।
Na और हर कॉर्नर में, एवरी कॉर्नर में यहाँ पे एक H है, मैं जैसा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक H है, प्लस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और O के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। देखो मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन पॉजिटिव, C सिंगल बॉन्ड हो एंड नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा। ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे मिला हुआ है, हर कॉर्नर में H है और यहाँ इस प्रोडक्ट में अभी क्या होगा, हियर so in this case sodium phenoxide, and here between carbon and hydrogen there is a single bond, but electron will go to carbon और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रहेंगे। तो कार्बन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, राइट वन, दिस हियर रिंग आई एम हैविंग हियर ONA, Na is plus, O is minus, and then here यहाँ से H निकलेगा, H इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है और ये सिंगल H यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है तो OH बनेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉन्ड, ये बॉन्ड कार्बन C के पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और ये H आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम salicylate. It is called as a sodium salicylate. Okay, and once we get this product sodium salicylate, इसमें करोगे आप dilute HCl। तो dilute HCl क्या होगा, यहाँ पे Na and Cl combine होगा और क्या लॉस होगा, NaCl, and then we get a ring that is OH और यहाँ पे मिलेगा COOH which is called as a salicylic acid। ओके, ये रिएक्शन अब ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो फिनॉल रिएक्ट विद NaOH और मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, और सोडियम फिनॉक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ और H इधर आएगा और H ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये मिला सोडियम सैलिसिलेट। और फिर इसमें ऐड करोगे डाइल्यूट HCl, यहाँ पे ऐड करोगे डाइल्यूट HCl, तो ONA विद डाइल्यूट HCl क्या मिला, NaCl लॉस हो गया और मिला S। बट सेम रिएक्शन आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली I'll write this way, ONA, Na is plus, O is minus, will react with carbon dioxide at what temperature, 398 Kelvin, and at 6 atmosphere, and then directly प्रोडक्ट क्या लिखोगे आप, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने क्या लिखा है OH और यहाँ पे क्या लिखना है आपको COON लिखना और COON लिखने के बाद उसमें ऐड करना है एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस कंबाइन विद द वाटर क्या फॉर्म करेगा, H3O प्लस,
and then directly we'll get the product here as O. Sodium phenoxide react with carbon dioxide at 398 Kelvin and 6 atmosphere. We get first this compound, sodium salicylate. And बाद में salicylic acid. अब ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो तो either write down in this form or this form, but अगर एग्जाम में लिखना तो यही फॉर्म में लिख दो. Okay. Let's stop it over here. We'll continue in the next class.